are you? I hope you are fit and fine at your home and you are doing preparation very well of midterm exam. Yesterday we already started revision work of chapter 17. In this continuous we will cover the second part of revision of chapter 17. So without getting any time, let's get started. Amount of water vapor or the moisture present in a given volume of air is termed as humidity. It helps in cooling and heating of the atmosphere. The actual amount of water vapor in a given volume of air is known as total humidity or absolute humidity. The ratio between the actual amount of water vapor present in cooling and heating of the atmosphere. The actual amount of water vapor in a given volume of air is total humidity or the air which comes in contact with the cool ground also becomes cooler and water vapor starts condensing over the grass, trees, leaves, etc., which could be seen in the early morning. This is called dew. Frost. When the temperature falls down to 0 degrees Celsius, the water drops form ice crystals which are known as frost. Fog or mist. Fog is formed by the condensation that takes place on the dust particles floating near the Earth's surface. It can be seen during the peak winter season. Clouds. Clouds are a mass of minute droplets of water formed by the condensation of water vapors in the upper atmosphere. On the basis of this appearance and the altitude at which they occur, the clouds are classified into the following categories. Nimbus clouds, cumulus clouds, stratus clouds, and cirrus clouds. Nimbus clouds. These clouds occur at low levels. They are dark grey or black in appearance. They cause heavy rainfall. Cumulus clouds. They appear like a cauliflower. They are often white or greyish. They are also the rain-bearing clouds. Stratus clouds. They appear like thin sheets in the sky. They are whitish and they hardly bring any rainfall. Cirrus clouds. These clouds look like the bird's feathers. They are often known as feathery clouds. They do not bring rainfall. Precipitation. Precipitation is the process under which the condensed water vapors fall on the ground in various forms such as rain, snow, sleet, and hail. Rainfall. Rainfall is the falling down of moisture. Children, yesterday we started revision of chapter 17, that is weather and climate. Yesterday I gave the fill-ups exercise and answer was pending. So today I'm giving the answer of that fill-ups. So let's start of fill-ups. First fill-up is: in a dash thermometer is freezing point of water is 0 degree Celsius and the boiling point is 100 degrees Celsius. So the answer is centigrade. And the second fill-up is centigrade thermometer was invented by the scientist called Celsius. Celsius was the name of the scientist who invented the thermometer. That is why it's called Celsius. And the question, third, the measure of the highest and the lowest temperature of any day, we use instrument called the dash maximum and minimum thermometer. So minimum and maximum thermometer, 6 maximum and minimum thermometer is used for the
measuring highest and lowest temperature in a day. Fourth Philip is the horizontal movement of air along the surface of the earth is called wind. That is the definition of the wind. And fifth Philip is relative humidity is measured by the means of instrument called humidity measured by the hygrometer or dry and wet bulb thermometer. So it is a instrument used by the meteorologist. Meteorologist अपन पहले पढ़ चुके हैं, जो कि इसकी वेदर और इनका इन्वेस्टिगेशन करते हैं. जो साइंटिस्ट होते हैं वो मेट्रोलॉजिस्ट कहलाते हैं और ये वेदर स्टेशन पे काम करते हैं. वेदर स्टेशन वो होता है जहाँ पे ये सारे ज्योग्राफिकल इक्विपमेंट रहते हैं और हवा की डायरेक्शन से और मॉइस्चराइज़र से, डे के सन से ह्यूमिडिटी से वो वेदर को फोरकास्ट करते हैं ना, कि आज मौसम कैसा रहेगा. तो कल हमने हाफ चैप्टर का रिवीजन कर लिया था. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी. एज वी नो दैट मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी, मैंने आपको एक्सपेरिमेंट भी करके बताया था प्रीवियस वीडियो में, आप देखना इस चैप्टर का. मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी, द वर्ड ऑफ मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी रेफर्स टू द डैम्पनेस और वेटनेस इन द एयर. It denotes the amount of water vapor present in the air at the given time and given temperature. जिस टेम्परेचर और जिस टाइम में जो वाटर वेपर प्रेजेंट रहती है एनवायरनमेंट में, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम डे टू डे, बिकॉज इट क्लोजली रिलेटेड टू द टेम्परेचर. अब ह्यूमिडिटी हर प्लेस की, जोग्राफिकल प्लेस की भी और हर जगह की भी अलग अलग हो सकती है. हमारे यहाँ अलवर, वैसे राजस्थान में ह्यूमिडिटी कम होती है, लेकिन हम राजस्थान में अलवर की बात करें क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट है और यहाँ पे ग्रीनरी अच्छी है और यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर ड्राई नहीं है ना, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी कंपैरेटिवली अदर स्टेट के, अदर डिस्ट्रिक्ट के, राजस्थान के यहाँ पे ज़्यादा रहती है ह्यूमिडिटी. तो ये क्लोजली रिलेटेड टू द टेम्परेचर. तो क्योंकि टेम्परेचर से रिलेटेड है, हवा से रिलेटेड है, बारिश से रिलेटेड है, तो हर कहीं ह्यूमिडिटी अलग अलग रहती है, कहीं कम, कहीं ज़्यादा, कहीं बिल्कुल भी नहीं, है ना. देन वी फील अनकम्फर्टेबल ड्यूरिंग द रेनी डेज, क्योंकि रेनी डेज में ह्यूमिडिटी ऑलरेडी हवा में इतनी रहती है और बारिश की वजह से वो और बढ़ जाती है. ये भी एक्सपेरिमेंट में दिखा चुकी हूँ आपको. बिकॉज वी perspire profusely as the temperature is high but the sweat does not evaporate quickly. क्यों हमें अनकम्फर्टेबल फील होता है? क्योंकि ऑलरेडी हवा में इतनी ह्यूमिड है, तो जो हमारी बॉडी की ह्यूमिडिटी या नमी है वो बाहर की हवा ऑब्जर्व ही नहीं करती, क्योंकि बाहर की हवा में ऑलरेडी इतनी नमी है, तो वो सोखती नहीं है. इसलिए हमारे बारिश के दिनों में ह्यूमिड ज़्यादा हो जाता है और हमारी पसीने सोखते नहीं है, और हमें अगर हवा नहीं होती तो हम अनकम्फर्टेबल फील करते हैं. पसीना सुखाने के लिए हमें ड्राई हवा या कूलर या फ़ैन की हवा या एसी की हवा हमें लेनी पड़ती है. इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ होल्ड ऑफ वाटर वेपर. और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी उसमें रहेगी, ज़्यादा रहेगी. ओके, नेक्स्ट वी हैव एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 ways. इसका वीडियो भी है, मैं आपको दिखाती हूँ. इसमें the amount of water vapor present in the given volume in the air given temperature is called absolute humidity. Absolute humidity वो कहलाएगी जिसमें कि पर्टिकुलर अमाउंट वॉल्यूम दी हुई है एयर की, और उसमें गिवन टेम्परेचर में जितनी वाटर वेपर है या जितनी नमी है वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहलाएगी, कंप्लीट ह्यूमिडिटी कहलाएगी. इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ ग्राम ऑफ वाटर पर क्यूबिक सेंटीमीटर. और इसको हम एक्सप्रेस कैसे किया जा सकता है, मेट्रोलॉजिस्ट कैसे करते हैं, पर ग्राम ऑफ वाटर, पर ग्राम वाटर का पर ग्राम ऐसे पर क्यूबिक सेंटीमीटर से इसको मेज़र किया जा सकता है. ये मेज़रमेंट की स्केल है, जैसे हमारा वेट केजी में होता है, इसी तरीके से ह्यूमिडिटी ये क्यूबिक सेंटीमीटर में ली जाती है. बट इट इज़ नॉट रिलायबल इंडेक्स बिकॉज द चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कैन चेंज द वॉल्यूम ऑफ एयर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. लेकिन ये मेज़रमेंट सही नहीं आता, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से टेम्परेचर वो अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, तो इसमें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में भी चेंजेस आते रहते हैं. मतलब ऑथेंटिकली नहीं, एग्जैक्ट नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, है ना, अनुमानन लगा सकते हैं कि इतनी ह्यूमिडिटी है आज. ठीक है, ये हो गया एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. And the relative humidity, the ratio between the actual amount water vapor present in the certain volume of air and given temperature and the maximum amount of the water vapor the air can retain at the temperature is called relative humidity. Relative humidity में actual amount जितनी water vapor present रहती है एयर में, वो
गिवन और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, और जितनी वाटर वेपर मैक्सिमम अमाउंट वाटर वेपर है ये एयर रिटेन करती है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी. इट इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज. और रिलेटिव ह्यूमिडिटी किस में एक्सप्रेस की जाती है? परसेंटेज में, कि आज 40% ह्यूमिडिटी है या 20% ह्यूमिडिटी है, इस तरीके से. नेक्स्ट टॉपिक इज रेन गोज. रेन गोज अलग इंस्ट्रूमेंट है, अपन इंस्ट्रूमेंट की बात कर चुके हैं, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में दिखा चुकी हूँ सारे इंस्ट्रूमेंट जो कि रेन अमाउंट को मेजर करता है ना. Rainfall is the most important form of precipitation. It is measured by means of instrument called rain gauge. It consists the cylinder which is bottle is placed for ironic cylinder, bottle, funnel and measuring jar होता है इसमें. इंस्ट्रूमेंट को भी यूज़ करते टाइम हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि इसका लेवल 10 ऊपर होना चाहिए, अर्थ के अबोव, है ना, 3 मीटर अबव द ग्राउंड होना चाहिए. इट इज़ नॉट टू बी सीन इन द सीपेज. evaporation ऑफ रेन वाटर शुड टेक प्लेस, और इट शुड नॉट बी kept in a under the building or under the tree. And it should always, rainfall is be measured, should be kept in the open. It should be away from the trees or building to avoid all hindrance, and it should be kept on the level of the place at least 30 meter above the ground. And it is to be seen that no seepage and evaporation of rainwater should take place. So this is the instruction when we are measuring rain amount by the instrument called rain gauge. तो हमें ये सब ध्यान में रखना चाहिए. ऐसा एक रेन गोज इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक बीकर होता है, जिसमें कि और एक छलनी होती है और नीचे एक फनल बॉटल रहती है. इसमें बारिश का पानी इसमें गिरता है और वो इकट्ठा होता है इसमें, और फिर हम इस जार से फिर हम निकालने के लिए, ये मेजरिंग जार है, इसमें नापते हैं और फिर पता चलता है कि आज इस सिटी में कितनी सेंटीमीटर बारिश हुई है. इस पर मेजरिंग देखो लगे हुए हैं, स्केल लगे होते हैं, इससे हमें पता लगता है. तो एक और बात है, प्रिकॉशंस में इन्होंने ये भी लिखा है, मीट्रोलॉजिस्ट या जो एक्सपर्ट है वही करते हैं कि जब हम उड़ेलें इस बॉटल से इसमें, तो कोई भी एक भी ड्रॉप नीचे नहीं करनी चाहिए, वरना मेजरिंग गलत आ सकता है ना. और 3 मीटर अबोव होना चाहिए ये जार, और ओपन प्लेस में रखना चाहिए, किसी ट्री और बिल्डिंग के नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सीपेज आ सकती है पानी, तो वो अमाउंट गड़बड़ हो सकता है. तो इस तरीके से हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते समय. हमने इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से देखे? एक तो रेन गोज जो कि रेन वाटरफॉल को मेज़र करता है, एक एंड्रॉइड बैरोमीटर, है ना, देन मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर जो कि एनवायरनमेंट में हॉटनेस और ड्राइनेस को शो करता है. देन ह्यूमिडिटी बैरोमीटर ह्यूमिडिटी को शो करता है. रेन गोज बारिश को शो करता है. वेट एंड ड्राई थर्मामीटर, एंड विंड वेन शो द विंड डायरेक्शन, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दीज आर द इक्विपमेंट टू मेजरिंग एंड एक्यूरेसी टू फोरकास्टिंग द वेदर. वाई द वेदर इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस, वो हम उसमें एक और वीडियो है, मैं आपको उसमें दिखाऊंगी कि हमारे लिए वेदर का जानना या किसी भी पर्सन के लिए वेदर का जानना क्यों इम्पॉर्टेंट है ना. ये हो गया आपका रिवीजन. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द क्वेश्चन आंसर. आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं, एमसीक्यूज के हैं जिसके मैंने सीधे आंसर लिख दिए हैं. मर्करी इज ए बैरोमीटर फॉल्स 1 centimeter for the every 110 meter of the ascent. Winds blow from the area of always high pressure area to low pressure. What is the temperature and how it is measured? The temperature is a particular place denote the degree of hotness and coldness of the air at that place, and it is measured by the instrument called thermometer. थर्मामीटर भी कितने तरह के होते हैं हम प्रीवियस वीडियो में, मैं चैप्टर के इसके वीडियो में आपको बता चुकी हूँ. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हाउ इट इज मेजर्ड. Air has a weight and it exerts pressure on the earth. We know on the earth's surface this pressure is known as the atmospheric pressure, and air pressure is measured by an instrument called barometer. barometer से हम इसको एयर प्रेशर को मेज़र करते हैं. पिक्चर आपने देखी बैरोमीटर की. ओके, थैंक यू चिल्ड्रन. एंड